next topic for this chapter, unit and measurement. So I say this is the fourth part of the unit and measurement. Principle of homogeneity of dimensions. A physical equation will be dimensionally correct if the dimension of all terms occurring on both sides of the equation are the same. So this is the equation s equals to ut plus half at square. So according to the principle of homogeneity of dimensions, the dimensions of the s is equal to the dimension of the ut is equal to the dimension of half at square. Second example, half mv square equals to mgh. It means dimension of the half mv square equals to dimension of mgh. Same, dimension of the force equals to dimension of 6 pi eta rv. Here eta is a coefficient of the viscosity, r is the radius, v is the velocity. And this one, dimension of the F into S, force into displacement, equals to dimension of the half mv square and dimension of the half mu square. Next equation, the dimension of the v square equals to dimension of the u square and the dimension of the 2as. Last question, dimension of the t equals to dimension of the 2 pi under root L upon j. So these are the example of principle of homogeneity. Again बच्चों, अगर इस फिजिकल इक्वेशन के जितने टर्म्स हैं उन सारे टर्म्स के डायमेंशन इक्वल हैं तो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी लग रहा होता है. या दूसरे वर्ड में आप कह सकते हो कि कोई फिजिकल इक्वेशन तभी ट्रू है जब उसके सारे टर्म्स के डायमेंशन सेम हों. ये डायमेंशनल फार्मूला का एक एप्लीकेशन भी है. ऐसे सेकंड एप्लीकेशन बोलते हैं टू चेक द डायमेंशनल करेक्टनेस ऑफ द फिजिकल इक्वेशन. सो फर्स्ट फिजिकल इक्वेशन एस इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर. यहां हमने ब्रैकेट में लिख दिया है डायमेंशन ऑफ द एस m0 l t0, dimension of the u m0 l t minus 1, dimension of the time m0 l0 t, dimension of the acceleration m0 l t to the power minus 2. अब dimension of this term s m0 l t0, dimension of this term ut m0 l t to the power minus 1 into t equals to m0 l t0, dimension of the terms of 1/2 at square. आपको पता है 1/2 कांस्टेंट टर्म है, इसका कोई डायमेंशन नहीं होगा. डायमेंशन ऑफ द एक्सेलरेशन m0 l t to the power minus 2 and dimension of the t means time, square of the time here, so t square, so this is m0 l t0. All the terms of both sides of the equation has same dimension, that's why you say that this equation is physically correct or dimensionally correct. This physical equation is dimensionally correct. Another equation, another problem, half of mv square equals to mgh. m क्या है मास, v है वेलोसिटी. तो इस पूरे टर्म का जो डायमेंशन हुआ, हाफ तो कांस्टेंट है, mv स्क्वायर का डायमेंशन मींस डायमेंशन ऑफ द मास इनटू डायमेंशन ऑफ द स्क्वायर ऑफ द वेलोसिटी. So this is the dimension of the mass m l0 t0 and dimension of the square of the velocity is m0 l t to the power minus 1 whole square. So here m to the power 1, here m to the power 0, that's why m to the power n 1. Here l to the power 0, here l to the power 2, that's why this is l to the power 2. Here t to the power 0, here t to the power minus 2, so that is a t to the power minus 2. So this is m l square t to the power minus 2. This is the dimension of the mv square. अब राइट हैंड साइड देखते हैं. एम जी एच, एम मीन्स मास, जी मीन्स एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एच मीन्स हाइट. सो दिस इज एम एल जीरो टी जीरो, एम जीरो एल टी टू द पावर माइनस 2. This is the dimension of the mass. This is the dimension of the acceleration due to gravity m0 L t to the power minus 2, and this is the dimension of the height m0 L t to the power 0. So
So m, this is m because here m to the power 0, m to the power 0. बच्चों तुम्हें पहले से पता है कि जिसका मल्टीप्लीकेशन कर रहे हो अगर उनका बेस सेम है तो पावर ऐड होते हैं. तो यहाँ m to the power 1, m to the power 0, m to the power 0, that's why m to the power 1. L to the power 0, L into L, that's why L square. T to the power 0, T to the power minus 2, so that is a T to the power minus 2. So the right hand side total dimension is m L square T to the power minus 2. अब आप देखते हो कि डायमेंशन ऑफ द लेफ्ट हैंड साइड फॉर गिवन टर्म्स इज इक्वल टू द डायमेंशन ऑफ द राइट हैंड साइड फ्रॉम गिवन टर्म्स. इट मीन्स दिस इक्वेशन, दिस फिजिकल इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट. ओके, नाउ third here, force into displacement equals to half of mv square minus half of mu square. पहले हम लेफ्ट हैंड साइड में देखते हैं. लेफ्ट हैंड साइड में पहले हम फोर्स का डायमेंशन लिखेंगे m l t to the power minus 2 इंटू वेलोसिटी का डायमेंशन m0 l t to the power minus 1 होल स्क्वायर. ध्यान रखना बच्चों यहां पर 1/2 कांस्टेंट है और इस कांस्टेंट का कोई डायमेंशन नहीं होता. ये वैल्यू डायमेंशन लेस है, ये वैल्यू डायमेंशन लेस है, इसका कोई डायमेंशन नहीं है. माइनस, इसको देखते हैं. ये जो लिखा हुआ है माइनस, कोई गलत दिख गया ना. एग्जाम्पल नंबर 3, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट F इंटू एस इक्वल टू हाफ ऑफ mv स्क्वायर माइनस हाफ ऑफ mu स्क्वायर. तो बच्चों पहले लेफ्ट हैंड साइड का डायमेंशन देखते हैं, इस पूरे टर्म का डायमेंशन देखते हैं क्या है. तो हम लिख देते हैं डायमेंशन ऑफ लेफ्ट हैंड साइड, मतलब डायमेंशन ऑफ फोर्स इंटू डायमेंशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट. अब बच्चों डायमेंशन ऑफ फोर्स आपको पता है m l t to the power minus 2 और डायमेंशन ऑफ द डिस्प्लेसमेंट आपको पता है m0 l t0. मल्टीप्लीकेशन किया तो m की पावर 1 m की पावर 0 मतलब m की पावर 1, l की पावर 1 l की पावर 2 मतलब l स्क्वायर, t to the power minus 2 t to the power 0 मतलब t to the power minus 2. तो जो डायमेंशन ऑफ द लेफ्ट हैंड साइड आया उसकी वैल्यू कितनी आई m l स्क्वायर t to the power minus 2. अब डायमेंशन ऑफ राइट हैंड साइड फॉर ईच टर्म देखते हैं. ईच टर्म मतलब पहला टर्म ये, दूसरा टर्म ये. तो हम यहां लिख देते हैं डायमेंशन ऑफ हाफ ऑफ mv स्क्वायर माइनस डायमेंशन ऑफ हाफ ऑफ mu स्क्वायर. अब देखो बच्चों हाफ कांस्टेंट है, इसका कोई डायमेंशन नहीं होता. ये हाफ कांस्टेंट है, इसका कोई डायमेंशन नहीं होता. तो मास का डायमेंशन कितना होता है, हम सीधे m लिख देते हैं. m L0 T0 होता है. L0 T0 का मीनिंग 1 है, यहां हम m लिख सकते हैं. और डायमेंशन ऑफ द v मतलब m0 L T to the power minus 1 स्क्वायर है, इसलिए यहां पर स्क्वायर कर दिया. माइनस डायमेंशन ऑफ द मास इंटू डायमेंशन ऑफ द इनिशियल वेलोसिटी. अब इनिशियल वेलोसिटी का स्क्वायर, ठीक है. तो यहां देखो m टू द पावर 1 m टू द पावर 0 दोनों के बेस इक्वल है, इसलिए पावर आप एड हो जाएंगे. तो ये हुआ m l स्क्वायर t टू द पावर माइनस 2. यहां पर भी m l स्क्वायर t टू द पावर माइनस 2. अब आप बताओ ये जो टर्म है इसका डायमेंशन इस टर्म के इक्वल है. तो राइट हैंड साइड के ईच टर्म का डायमेंशन लेफ्ट हैंड साइड के डायमेंशन के इक्वल है. इसका मतलब ये फिजिकल इक्वेशन हियर डायमेंशन ऑफ लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू डायमेंशन ऑफ राइट हैंड साइड फॉर ईच टर्म लिख देते हैं. हम ईच टर्म लिख देते हैं, हर टर्म के लिए ये बात लागू होती है. तो ये फिजिकल इक्वेशन क्या है, दिस फिजिकल इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट. ठीक है बच्चों, तो ये फिजिकल इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है. अब एक और एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल नंबर 4 लिखते हैं. एग्जांपल नंबर 4 में हमने कहा है कि v स्क्वायर इक्वल्स टू u स्क्वायर माइनस 2as. ये एग्जांपल. इस एग्जांपल में पहले हम लेफ्ट हैंड साइड का डायमेंशन देखते हैं.
तो डायमेंशन ऑफ लेफ्ट हैंड साइड लिखते हैं। तो डायमेंशन ऑफ द लेफ्ट हैंड साइड क्या है भाई, वेलोसिटी का स्क्वायर, तो m0 l t टू द पावर -1 होल स्क्वायर, इसकी मीनिंग हुई m0 l स्क्वायर t टू द पावर -2। ये आपका इधर का डायमेंशन हो गया। अब डायमेंशन ऑफ राइट हैंड साइड देखते हैं भाई। तो डायमेंशन ऑफ राइट हैंड साइड में दो टर्म्स हैं कि u स्क्वायर है और एक -2as है। u वेलोसिटी है, तो दिस इज m0 l t टू द पावर -1 होल स्क्वायर -2 इंटू एक्सलरेशन मीन्स m0 l t टू द पावर -2 इंटू m0 l t0। ये डिस्प्लेसमेंट का डायमेंशन है, ये एक्सलरेशन का डायमेंशन है, ये इनिशियल वेलोसिटी का डायमेंशन है, ये फाइनल वेलोसिटी का डायमेंशन था और ये फाइनल वेलोसिटी डायमेंशन का स्क्वायर था। इसको सॉल्व करते हैं तो यहाँ m0 l स्क्वायर, बिकॉज यहाँ l पावर 1 होल स्क्वायर मीन्स l स्क्वायर t टू द पावर -2 इंटू m0 l स्क्वायर t टू द पावर -2। वाई, बिकॉज हियर l इंटू l मीन्स l स्क्वायर। 2 अगेन कांस्टेंट टर्म, इसका कोई डायमेंशन नहीं होता। इसका मतलब डायमेंशन ऑफ दिस टर्म इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ दिस टर्म इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ दिस टर्म। फिर से आपके पास वही कंडीशन आया कि डायमेंशन ऑफ LH साइड इक्वल टू डायमेंशन ऑफ RHS, मतलब दोनों साइड के डायमेंशन इक्वल हैं। तो ये इक्वेशन भी फिजिकली करेक्ट है। ये इक्वेशन भी फिजिकल इक्वेशन इज करेक्ट। फिजिकल इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट। ये आपका ये हो गया। अब एक एग्जांपल और हमने लिखा यहां पे f इक्वल टू 6 पाई ईटा RV। फिफ्थ f इक्वल टू 6 पाई ईटा RV। तो लेफ्ट हैंड साइड का डायमेंशन मैं सीधे यहां लिख देता हूं, फोर्स मतलब ml t टू द पावर -2। कोई प्रॉब्लम नहीं, सबको पता है फोर्स का डायमेंशन ml t टू द पावर -2 होता है। और राइट हैंड साइड में जो डायमेंशन पहले 6 पाई कांस्टेंट है, इसका कोई डायमेंशन नहीं होता। ईटा कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी है, इसका डायमेंशन होता है। रेडियस का डायमेंशन होता है, वेलोसिटी का डायमेंशन होता है। तो ईटा का डायमेंशन कितना होता है, ml टू द पावर -1 t टू द पावर -1। r का डायमेंशन कितना होता है, r का डायमेंशन l। v का डायमेंशन कितना होता है, v का डायमेंशन l t टू द पावर -1। अब ये वेलोसिटी है, ये क्या है, रेडियस है, ये कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी है। बच्चों ये कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी है, ये रेडियस है और ये वेलोसिटी है। और f क्या है, f है फोर्स। कौन सा फोर्स है, कहां लगता है, इसको विस्कस फोर्स बोलते हैं। अब विस्कस फोर्स कहां लगता है, दो लेयरों के बीच में लगता है, लिक्विड में लगता है, एयर में लगता है। इसको हम जब लिक्विड पढ़ेंगे तो पढ़ लेंगे। लेकिन अभी देखिए ml टू द पावर -1 t टू द पावर -1 इंटू l, तो ये l और ये l मैं कैलकुलेशन करके लिख देता हूं। m l टू द पावर -1 इसकी पावर +1 इसकी पावर +1, यहाँ t टू द पावर -1 इसकी भी पावर -1, मल्टीप्लीकेशन करने पे पावर ऐड होती है। ये हो गया m l t टू द पावर -2। देखिए ये डायमेंशन है फोर्स का। तो लेफ्ट हैंड साइड का डायमेंशन राइट हैंड साइड के डायमेंशन के इक्वल है। इसका मतलब ये इक्वेशन ही, दिस फिजिकल इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट। अब क्यों करेक्ट है, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बोथ साइड के डायमेंशन इक्वल। एक और इक्वेशन हमने दिया है t इक्वल टू 2 पाई √L/g। तो हम पहले लेफ्ट हैंड साइड लिख लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड ये टाइम पीरियड है, टाइम पीरियड का डायमेंशन m0 L0 t होता है, ये तो मुझे मिल गया। राइट हैंड साइड में 2 पाई कांस्टेंट है, इसका कोई डायमेंशन नहीं होता। l टू द पावर हाफ, इसको लिख सकते हैं l टू द पावर हाफ अपॉन g टू द पावर हाफ। g टू द पावर हाफ मतलब l t टू द पावर -2 टू द पावर हाफ। हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है ना, क्योंकि g एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का डायमेंशनल फार्मूला होता है m0 l t टू द पावर -2। तो मैंने इसकी जगह में लिख दिया। अब l टू द पावर हाफ डिवाइड बाई l टू द पावर हाफ इंटू t टू द पावर -1, बिकॉज ये
मल्टीप्लीकेशन होगा तो 1 इंटू 1/2 1/2 आया, -2 इंटू 1/2 तो -1 आ गया। अब देखो ये वैल्यू और ये वैल्यू कैंसिल हो जाएगी, तो कितना मिलेगा m0 L0 t, ये t टू द पावर -1 ऊपर जाएगा तो कितना बच जाएगा t। इसमें भी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का डायमेंशन इक्वल है, ये फिजिकल इक्वेशन भी डायमेंशनली करेक्ट। ओके बेटा।